اور خبر آپ کو دیں کہ غزہ کے رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 120 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں ایک اسرائیلی رقمالی بھی مارا گیا۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 57,296 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 9,100 سے زائد بچے اور 6,500 سے زائد خواتین شامل ہونے کی رپورٹس ملی ہیں، جبکہ زخمیوں میں 8,663 بچے اور 6,327 خواتین بھی شامل ہو چکی ہیں۔ تو وہیں ادھر دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں پر سے ہونے مظالم میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اقوام متحدہ کے ہیومن افیئرز کے آفس OICHA اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے 31 دسمبر 2023 تک کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 3,55,000 رہائشی یونٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا لبنان پر ایک اور حملہ، حزب اللہ کے سینئر اہلکار سمیت 4 ارکان کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے نقورہ میں عمارت پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے سینئر اہلکار حسین یزبیک سمیت 4 ارکان شہید ہو گئے۔ چند روز قبل بھی اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے دفتر پر ڈرون حملہ کر کے حماس کے سیاسی دفتر کے نائب صالح العروری کو 2 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا تھا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس رہنما کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو صالح العروری کے قتل کی سزا ضرور دی جائے گی۔ جنرل سلیمانی کی شہادت کی 4تھی برسی پر اپنے خطاب میں حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر اسرائیل لبنان کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو ہماری محدود جنگ کا دائرہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری لڑائی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اصول ہوگا۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے الاقصام بریگیڈز کے شیخ صالح العروری سمیت 3 رہنماؤں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی ڈرون حملے سے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں شہید ہونے والے الاقصام بریگیڈز کے رہنماؤں شیخ صالح العروری، عزائم القرا اور محمد الرئیس کو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سپرد خاک کیا جا چکا۔ نماز جنازہ بیروت کی طارق الجدیدہ امام علی مسجد میں ادا کی گئی ہے، جس میں حماس اور الاقصام بریگیڈز کے مجاہدین سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے پریس کانفرنس کے دوران سربراہ حماس اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ صالح العروری جنوبی بیروت میں ایک حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کا قتل اسرائیلی جارحیت ہے۔ غزہ، لبنان، عراق اور یمن میں اسرائیلی اور امریکی حملوں میں شہید لوگوں کا آپس میں تعلق ہے۔ شہداء کی قربانیاں خطے کے لیے رنگ لائیں گی۔ ایران کے شہر کرمان میں سابق جنرل قاسم سلیمانی کے مقبرے کے قریب 2 دھماکے ہو گئے۔ 103 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سابق ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کے مقبرے کے نزدیک دھماکہ خیز مواد سے بھرے 2 بیگ قبرستان کے داخلی دروازے پر رکھے گئے۔ پہلا دھماکہ مقامی وقت کے مطابق 2:50 پر ہوا، دوسرا 15 منٹ کے بعد ہوا۔ پہلے دھماکے کے بعد ہجوم کی بھگدڑ کے دوران بھی لوگ زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر مقبرے میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ دھماکے میں 103 افراد جاں بحق اور 211 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرمان کے ایک اسپتال میں مقامی صحافی نے بتایا کہ اس واقعے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی حکام صورتحال کا جائزہ لے کر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایران میں حکومت کی جانب سے آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران کے شہر کرمان میں دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حملے کے ذمہ داروں کو کڑا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کرمان میں دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے ایک بار پھر تباہی پھیلائی ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا۔ اس تباہی کا انشاءاللہ کڑا جواب دیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سیاستدانوں کی تاحیات نہلی سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن کمیشن
ताहयात न अहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की 62(1)F के तहत सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत दरख्वास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सजादुल हसन के वकील खुरम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है। क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील खुरम रजा से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त तक महदूद रहें, जिस पर खुरम रजा का कहना था कि अदालत मुकदमे की कार्रवाई 184/3 में चला रही है। यहाँ 187 के तहत आर्टिकल 62 में कोर्ट ऑफ लॉ की तारीफ नहीं बताई गई। वकील खुरम रजा ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F की डिक्लेरेशन देने का इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल का भी है। आर्टिकल 62(1)F में कोर्ट ऑफ लॉ दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इख्तियारात की तरफ ना लेकर जाया जाए। आर्टिकल 62(1)F कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को आर्टिकल 184/3 सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 62(1)F सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस ने वकील खुरम रजा से इस्तफसार किया कि आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत कहाँ है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट अपील के दायरे इख्तियार में सुनती है, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दुरुस्त है, लेकिन क्या 62(1)F ट्रिब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है। यहाँ ताहयात नाअहली का ये इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी अदालतें हैं जहां आईनी दरखास्तें दायर होती हैं। इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात ने अहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि अवाम की जानिब से सानिहा 9 में मुलव्वस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। अवाम का कहना है कि जब तक इन मुलव्वस किरदारों को सजा नहीं मिलेगी ये सिलसिला जारी रहेगा। 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलने चाहिए। मुल्क में कानून की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 9 मई के सानहे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये हमारे खुद मुख्तारी पर हमला था। हमें बाहैसियत कौम मुल्क में आयन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। कानून की बालादस्ती से अवाम खुद को महफूज तस्वुर करती है। अवाम का ये कहना था। जो आदमी गलती करेगा तो ही विल पनिश। जब तक ये आप इनको सजा नहीं देंगे ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहे। फौज के मुखालिफ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। जिन्होंने किया बिल्कुल मिलनी चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत मिलनी चाहिए, फौजी अदालतों के तहत। जो मुलव्वस है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी गलत, इवन वो नहीं है, इसके अलावा भी आवाम का मतलब जो मर्जी करे का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी करे। हर मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे और जो लोग रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं वही कामयाब होते हैं। 9 मई का वाकया जिसने किया मैं शदीद मुजम्मत करता हूँ और जो इनमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो। 9 मई का जो वाकया वो तो हमारे मुल्क और हमारी खुद मुख्तारी पे हमला है ना। जिसने भी ये तबाही की, चाहे मैं वो मेरा बेटा है चाहे मेरा बाप है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो इस मुल्क की इज्जत और सल्वनिटी का सोचे वो ही। रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ तो हर मुल्क में है, लेकिन हमें आवाम में यही शऊर होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को हम फॉलो करें। इवन एक सिग्नल भी रेड है ना, उसमें भी हम खड़े रहें, चाहे रात के 2 बजे क्यों ना, ठीक है ना। तो रूल ऑफ लॉ के बगैर तो कोई मुल्क नहीं चल सकता। रूल ऑफ लॉ होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ हमारे लिए स्ट्रेंथ है, पावर है। अगर मैं कितने भी गरीब हूँ लेकिन अगर मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ टाइट हो तो मैं अपने आप को दलेर समझता हूँ, समझ गए नहीं। तो वो तो जरूरी है। वो जिन्होंने जो गलती करते हैं, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया, जो भी किया गलत किया, और जिसने किया उसको वाकई मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जो लोगों ने ये काम किया उनको पनिशमेंट मिलनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सीटें निकालने के लिए मुतहरिक हो गई। सियासी रहनुमाओं की जानिब से पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब मुल्तान का रुख करेंगे।
जहां कुछ अहम सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्किल है। आसिफ अली जरदारी मुल्तान में 3 से 4 रोज क़याम करेंगे। इनका ये दौरा सियासी सरगर्मियों के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सीटें निकालने के लिए मुतहरिक हो गई है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर वो कुछ अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी मुल्तान में 3 से 4 रोज क़याम करेंगे। इनका ये दौरा सियासी सरगर्मी के हवाले से अहमियत का हामिल है। इसी पर मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखा जाए तो इलेक्शन के हवाले से मुतहरिक हो गई है, और स्पेशली पंजाब की बात की जाए तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो सरबराह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ रजा जरदारी, अब उन्होंने पंजाब में अपने जो है डेरे जमा लिए हैं, और जराये के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि वो आज जो है वो मुल्तान के लिए भी रवाना हो सकते हैं, जहां पर वो वसेत में कुछ आम सियासी जो लोग हैं वो वहाँ पर शमूलियत का ऐलान भी करेंगे, और मुमकिन तौर पर आसिफ जरदारी का ये जो दौरा है वो 3 से 4 रोज का हो सकता है। और इस दौरे के दौरान जो सियासी सरगर्मी के हवाले से बात की जाए तो बहुत से जो अहम लोग हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। देखा जाए तो पंजाब में जो आज जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, जिसमें हमने पहले भी जो खबर बताई थी कि जो अब्दुल गफूर हैं वो पहले ही उन्होंने अपनी जो मुस्लिम लीग नून जो है वो छोड़ दी है, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि अब जो आसिफ जरदारी है वो बहुत जल्द जो है वो मुल्तान का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर वो 3 से 4 रोज का जो उनका क़याम होगा, और उस दौरान काफी जो सियासी लोग हैं वो भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। और पाकिस्तान के बारे में बताया जाए तो उनकी अब जो स्ट्रेटेजी वो भी यही है कि बहुत से जो सियासी पार्टी जमातें हैं उनकी आपस में जो टिकटों की तकसीम के हवाले से जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं और वो जमातें छोड़ रही हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये न्यूज़ स्ट्रेटेजी है वो यही है कि वो इन लोगों से अपना राब्ता बहाल करेंगे और उनको अपनी जमात में जी सोनिया मलिक हमें तफसीलात से आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 785 अफगान शहरी वापस गए, जिनमें 268 मर्द, 195 खवातीन और 323 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 47 गाड़ियों में 82 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,58,000 से ज़ायद हो चुकी है, और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में ज़रूरतमंद खानदानों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में ज़रूरतमंद खानदानों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी और सारी है। सर्द मौसम की आमद के साथ ही मुख्तलिफ अजला में खुश्क राशन, गर्म कपड़े और सर्दी से बचाव के लिए दीगर अशिया की फराहमी की जा रही है। पाक फौज ने बाजूड़, महमद, खैबर सवात, दीर, बुनीर और चित्राल के दूर दराज इलाकों में NGOs के ताउन से मुकामी अफराद को जरूरी जिंदगी की तमाम सहूलियात फराहम की हैं। मुस्तहिक खानदानों में खुश्क राशन, गर्म कपड़े, चादरें, कंबल, रजाइयाँ और बच्चों की दीगर अशिया फराहम की गई। अवाम ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की अनथक कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। अवाम का कहना है कि सर्द मौसम में ये इमदाद हमें न सिर्फ सर्दी से बचाएगी बल्कि कई मौसमी बीमारियों से भी बचाने में मदद फराहम करेगी। इसी हवाले से जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे अली असगर भट्टी से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी असगर भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अली असगर भट्टी से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट करते चलें कि पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में जरूरतमंद खानदानों के लिए बुनियादी फराहमी की सहूलियात है। आपको बता रहे हैं पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के
دور دراز علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ سرد موسم کی آمد کے ساتھ ہی مختلف اضلاع میں خشک راشن، گرم کپڑے اور سردی سے بچاؤ کے لیے دیگر اشیاء کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے علی اصغر بٹی سے۔ جی علی اصغر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ پاک فوج خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں ضرورت مند خاندان کے لیے سہولتیں بنیادی فراہم کر رہی ہیں۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے نارتھ کی جانب سے خیبر پختونخوا کا دور دراز کے علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سرد موسم کی آمد کے ساتھ ہی مختلف اضلاع میں خشک راشن، کپڑے، گرم کپڑے، سردی سے بچاؤ کے لیے چیزیں اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے باجوڑ، مہندی، خیبر پختونخوا، سوات، بیر، بنیر اور چترال کے دور دراز علاقوں میں این جی او کے تعاون سے مقامی افراد کی ضرورت زندگی کی سہولتیں میسر فراہم کی گئی۔ مستحق خاندان میں خشک راشن، گرم کپڑے، چادریں، کمبل، رضائیاں اور بچوں کی دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ عوام پاک فوج کے اور فرنٹیئر کورس کے نارتھ کے ان کاوشوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ سرد موسم کے آمد کے ساتھ ہی امداد نے ہمیں نہ صرف سردی سے بچایا ہے بلکہ موسمی بیماریوں سے بھی بچایا ہے۔ مدد فراہم کی گئی ہے۔ جی، عوام کا رد عمل۔ جی بہت شکریہ علی اصغر بٹی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سینئر رپورٹر علی اصغر بٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کوٹ ادو میں خشک سردی کے باعث بچوں کی بڑی تعداد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھنے لگا۔ بچوں کو کس طرح ان بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے؟ ہمارے نمائندے امیر حمزہ اس وقت چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان شیخ کے ہمراہ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے لیں گے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتے ہی جو مختلف بیماریاں جو ہیں وہ بچوں میں جنم لینے لگی ہیں۔ اس حوالے سے بتاتا چلوں، میں اس وقت ڈی ایچ کیو اسپتال کوٹ ادو میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ شفیق الرحمان شیخ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے جانتے اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کون کون سی بیماریاں جو ہیں سردی کے باعث جنم لے رہی ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سردیاں عروج پہ ہیں اور بچوں میں بخار، کھانسی، نزلہ، زکام یہ جو ہے نا کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور بچے ہمارے پاس نمونیا کے ساتھ، سانس کی تکلیف کے ساتھ یہاں پہ ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ بچوں میں استھما کی تکلیف بھی ہو رہی ہے یہاں پہ اسموک کی وجہ سے اور دھوئیں کی وجہ سے۔ اور احتیاطی تدابیر آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی اپنا بچوں کو بخار اور کھانسی کی صورت میں آپ نے فوراً ہاسپٹل میں تشریف لے ہیں، اور بچوں کو گرم کپڑے پہنانے ہیں، ٹھنڈ سے بچا کر رکھنا ہے، خاص کر چھوٹے جو بچے ہیں 1 سال سے نیچے ان میں نمونیا کی شدت جو ہے نا وہ کافی تیز ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا بچوں کو بعض وقت ہمیں داخل بھی کرنا پڑتا ہے اور آکسیجن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہلکا سا بخار ہو، ہلکی سی کھانسی ہو، فوراً جو ہے نا اپنے معالجے سے رجوع کریں تاکہ بر وقت جی بالکل، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے یہی کہنا کہ 1 سال سے کم عمر کے الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق پی او اور اے پی او کی گورنمنٹ ہائی اسکول شورکوٹ میں ٹریننگ جاری ہے۔ ماسٹر ٹرینرز ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن وومن اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن حافظ محمد خالد پی او اور اے پی او کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ آر او حلقہ 110 اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے بھی ٹریننگ کا جائزہ لیا۔ 1100 مختلف محکمہ جات کے افسراد کو ایک دن میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ان کے ساتھ موجود ہیں تحصیل شورکوٹ میں۔ جی غلام شبیر طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل موجود ہوں شورکوٹ میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شورکوٹ میں الیکشن کی جس طرح تیاریاں پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہیں، اور شورکوٹ میں بھی اسی طریقے کے ساتھ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق یہاں پر جو پی او اور جو اے پی اوز ہیں ان کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول میں جو ٹرینرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہاں پر جو سپوک پرسن ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میڈم صاحبہ جو ماسٹر ٹرینر ہیں جو شورکوٹ میں تمام یہاں پہ جو ٹرینرز آئے ٹریننگ لوگ کو ٹریننگ بھی کروا رہی ہیں۔ السلام علیکم میڈم صاحب، بتائیے گا آپ ماسٹر ٹریننگ ہیں، آپ اس میں کروا رہی ہیں ٹریننگ الیکشن میں، کیا سمجھیں گے کہ آپ 2 دن میں آپ ان کو ٹرین کر لیں گے، جو پی اوز ہیں اور اے پی اوز ہیں یہ اپنی ڈیوٹی سے کس طرح انجام دے سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو میں آپ کے چینل کی شکر گزار ہوں کہ اس کے تھرو ہم الیکشن کمیشن کی جو ٹریننگ ہے اس کی کوریج کر رہے ہیں۔
यहाँ पे 2 रोज़ा इलेक्शन ट्रेनिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताउन से। पीओज़ और एपीओज़ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मास्टर ट्रेनर मैं श्योर हूँ कि हमने इनको स्पेसिफिकली जो है सेशन के अंदर 4 घंटे का सेशन था, हमने इनको टोटली ट्रेन किया है। जो भी इलेक्शन से मुतल्लिका चीज़ें हैं, मटेरियल है, मैनुअल है, स्टेशनरी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड की गई है वो हमने पार्टिसिपेंट्स को दी है। और मैक्सिमम फैसिलिटेशन जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल के हमारे प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो ऑल ओवर मैं समझती हूँ कि ये दोनों सेशंस वंडरफुल रहे, मैक्सिमम प्रेजेंस रही और पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो पूरी तरह से इसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे हाफिज खालिद साहब मौजूद हैं जो स्पोक पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि जो ट्रेनिंग आज हो रही है, ट्रेनिंग पीओज और एपीओज की जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इसका क्या सिलसिला जारी है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं और क्या क्या किस किस मकसद के लिए और क्या क्या उनको अहकाम जारी किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए मुख्तलिफ महकमा जात के जो लोग थे उनकी इलेक्शन के हवाले से ट्रेनिंग करवाई गई। 2 रोज़ा ट्रेनिंग थी। इसमें हाफ डे की ट्रेनिंग थी फी पर्सन। तो उसमें ये है कि मॉर्निंग इवनिंग 2 सेशन थे और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्टेशनरी भी दी गई, मटेरियल हेल्पिंग मटेरियल दिया गया और साथ जो है पार्टिसिपेंट जो है उनको लंच भी दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मॉर्निंग इवनिंग में तमाम सेशंस में हाज़िरी भरपूर रही। और कल भी एसी साहब ने जो आरओ हैं NA 110 के, उन्होंने विज़िट किया, आज भी उन्होंने विज़िट किया और मुख्तलिफ टीमों ने विज़िट किया और यहाँ के इंतजामात के ऊपर जो है अपने इत्मीनान का इज़हार किया। सर बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि आरओज ने विजिट किया है और यहाँ पर पीओ और एपीओ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके जो मेल और फीमेल दोनों सेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, आप ये बताएंगे कि इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है क्या इस पे परफेक्ट ये अपना इलेक्शन करवा सकेंगे? 2 दिन की ट्रेनिंग काफी होगी, सफिशिएंट होगी? देखें, जो इलेक्शन कमीशन ने तरतीब दिया है उस हवाले से इनको भरपूर ट्रेनिंग करवा दी गई है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इनको बुकलेट्स भी फराहम कर दिए गए हैं जो इनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद अल्लाह ताला से की जा सकती है कि कंडक्ट जो इलेक्शन का कंडक्ट है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भरपूर अंदाज से ये करवा सकेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी अनट्रेन पर्सन जो पोलिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ट्रेनिंग लोगों को करवा दी गई है ताकि वो इलेक्शन में जो स्मूथली तरीके के साथ बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और लोगों को लोगों का जो वोट। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जेर सदारत SHO चौकी इंचार्ज और सर्कल अफसरान का इजलास हुआ। मीटिंग में दिसंबर के क्राइम और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में थानों के हवाले से अमली इकदाम का भी जायजा लिया गया। काजी अली रजा का कहना था कि जराइम को कंट्रोल और मौसर इकदाम अपनाते हुए पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, ये एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जेर सदारत आज SHO चौकी इंचार्ज और DSP की जो है वो साथ मीटिंग में शिरकत हुई है, जिसमें कहा गया है कि जराइम को कंट्रोल और मौसर इकदाम अपनाते हुए पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। एसपी सिटी का कहना था कि असला की नुमाइश और डाला कल्चर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी करे, जबकि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। CMS और जेर तफ्तीश मुकदमात को यकसूर पेंडेंसी को क्लियर करवाएंगे, जबकि जराइम पेशा अनासर को फौरी गिरफ्त में लाकर जेल का रास्ता दिखाएं। एसपी का कहना था कि 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस और कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि थाना में आने वाले अवामुल नास के मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करेंगे, जबकि हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन बिलिंग करने वालों के खिलाफ जो है वो फौरी कार्रवाई अमल करके उनको भी जेल का रास्ता दिखाएंगे। वहां पर कहा गया कि मंशियात फरोशों और गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, जवान हर सिग्नल पर भीख मांग रहे हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है और IG पंजाब ने कहा है गदागरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रख के इनको गिरफ्तार करें और इसी तरह से स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल कंट्रोल करें और हॉट स्पॉट एरिया की खुद निगरानी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हर इलाका में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर डकैती की वारदात होती है और वहां से वारदात करके जो डाकू फरार हो जाते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि हॉट स्पॉट एरिया का मकसद ही ये है कि जहां 1 से 2 मरतबा वारदात हो तो इसका मकसद ये है कि डाकू यहाँ पर आसानी वारदात कर सकते हैं। तो पुलिस वहीं जहाँ पे वारदात होती है वहां पर नाकाबंदी कर लेती है और वारदात कंट्रोल हो जाती है, जबकि एसपी का कहना था कि जराइम को कंट्रोल करना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे।
उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच के अहले इलाका से तराजू की हिमायत के लिए मुलाकातें। अहमद सुलेमान बलोच ने इलाका मकीनों को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराई है। कहा कि इंशाअल्लाह हम जीत कर अवाम की खिदमत करेंगे। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जी आसिम। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच की अहले इलाका से तराजू की हमायत के लिए मुलाकातें। नाज़िम इंतखाब NA 128 चौधरी मोहसिन बशीर, मुकामी सियासी समाजी रहनुमा आसफ गुज्जर, हाफिज अहमद, उमैर, शेख एहसन हमरा थे। लिंक वादत रोड पर उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच की डोर टू डोर मुलाकातें। अहले इलाका की अहमद सुलेमान बलोच को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार। हल्का में अवाम के मसाइल इनके हल के लिए मुसलसल आवाज बनने पर अहमद सुलेमान बलोच का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद सुलेमान गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के 50वें कॉमन के ज़रिए तरबियत ASPs की मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत डिप्टी कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी DIG नईम अहमद शेख ने की। गवर्नर का कहना था कि पुलिसिंग के शोबे में चैलेंजेस और खतरात हैं। आप लोग खतरात में फ्रंट लाइन पर होते हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी सीखना बहुत अहम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT स्किल्स जदीद दुनिया की अहम महारतें हैं। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर मुतहरिक हो गए। सूबाई वजीर ने शाहदरा फ्लाईओवर पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरा किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा भी सूबाई वजीर के हमरा थे। सूबाई वजीर असफर अली नासिर ने शाहदरा चौक और इतराफ में जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। काम में सुस्त रवि पर बैरिस्टर असफर अली नासिर ने इजहार बरहमी का इजहार किया। इस मौका पर सूबाई वजीर का कहना था कि मंसूबा दी गई डेडलाइन तक हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। तमाम तरक्याती कामों के दौरान अवाम को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। DGPHA को हार्टिकल्चर कामों में तेजी लाने की सख्त हिदायत की। सूबाई वजीर ने ट्रैफिक की रवानी पर हर सूरत बरकरार रखने और मंसूबे को कॉन्ट्रैक्टर पर इजाफी नफरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि इजाफी मशीनरी और वसाइल लगाकर कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। किसी भी किस्म की ताखीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुराक का कारोबार करने वाले बड़े नाम पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ चुके। एडिशनल DG की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की जौहर टाउन G1 मार्केट में 20 मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और बेकरियों की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 13 फूड पॉइंट्स को 2,26,000 रुपए के जुर्माने, 7 को मजीद बेहतरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। 196 लीटर ज़ायदल मियाद ऑयल, टूटे गंदे अंडे, ममनुआ रंग, ज़ायदल मियाद अज्जा तल्फ कर दी गई हैं। अशाए खुरनोश की कीमतों में तैयारी में नाकाबिल इस्तेमाल ऑयल और ममनुआ अज्जा इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाइयाँ की गई। किचन एरिया में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात, हशरात की भरमार पाई गई है। बारहा इस्लाही नोटिस जारी करते हुए बावजूद इस्लाह न करने पर 13 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए। स्टेज ड्रामा प्रोड्यूसर और कवाली प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर इमरान शेख की जान को खतरा। बत्ता ना देने की वजह से मुलजिम ज़ीशान उर्फ चानी ने असलहा के जोर पर घर में जबरदस्ती घुसकर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट लिया। 5 लाख रुपए महीना बत्ता ना देने पर मुझे और मेरी बीवी को जान से मारने की धमकियां दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त शेख इमरान के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री और स्टेज ड्रामा के लिहाज से, और आज हमारे साथ शेख इमरान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके ऊपर कौन हमला कर रहा है और कौन इनसे बता वसूल करने की कोशिश कर रहा है और कौन इनको धमकियां दे रहा है। अच्छा शेख साहब, बताइएगा क्या ऐसा आज मसला पेश आया कि आज आपको छुप कर लाहौर आना पड़ा और स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है? क्या कहेंगे आज इस इवेंट के भी हवाले? ऐसा है कि कुछ दिनों से मुझे शानी टिल्लू और असद वान और असान जट, असलान मिर्ज़ा और 3 नामलूम ये लोग मेरे घर आए। इससे पहले तो मुझे शानी टिल्लू सिर्फ अकेला फ़ोन करके बत्ता मांगता था कि मुझे पैसे दो, अगर तुम 5 लाख रुपया महीना, और मुझे कह रहा था अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पूरे पंजाब में काम नहीं करने दूंगा और मैं तेरा पीछा करूंगा, हर तरीके से पीछा करूंगा। मैं 2 माह से ये मांग रहा था। उसके दोस्तों को मैंने कहा कि यार मेरी इनसे खुदाया जान छुड़ा दो, क्योंकि मैं
इतने पैसे मेरे पास नहीं होते कि मैं इसको पैसे दूं, अपना घर का गुजारा बड़े मुश्किल से चला रहे हैं हम। वो ना माना। 31 को सुबह 5:45 बजे ये अपने दोस्तों के साथ असदवान और असलान मिर्ज़ा, हसान जट के साथ और 3 लोग और कलेक्शन कोप पे मेरी बेगम को डरा कर दरवाज़ा खिलाकर अंदर आ गया और हमें हरासा किया और हर चीज़ मुझसे ले गया। 9 लाख रुपया ले गया, मोटरसाइकिल ले गया, LD ले गया और ओमन ले गया और घर का राशन ले गया। ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी और कपड़े जूते सब कुछ ले गया। मैंने FIR में लिखा हुआ है। ठीक है, मौके पे 15 कॉल मैंने की, कॉल के बाद 15 कॉल आई, फिर SHO सिविल लाइन आया, फिर उसके बाद SP लैरपोटोन साहब आए, उन्होंने वकूआ देखा, उन्होंने कहा ये सच है। ठीक है, और खुदा को हाजिर नाज़िल जानकर कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने देखे अपनी FIR में कोई सोना नहीं लिखा, कोई कड़ा नहीं लिखा, कोई चीज़ और नहीं लिखी, जो चीज़ था वो ही लिखा है। और मैं लाहौर भाग कर आ गया हूँ और लाहौर भी मेरे से पीछा कर रहा है और मेरी लोकेशनें निकाल रहा है। परसों पिंडी गया हुआ था, ठीक है, और बड़के मार रहा है। वो कह रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कत्ल कर दूंगा, तुमने जो काम है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इलेक्शन 2024 की तशहीरी मुहिम के लिए ज़ाब्ता इहलाक जारी कर दिया। पम्फलेट, पोस्टर, हैंडबिल्स और किताबचे मुकर्ररा साइज से ज्यादा शाया करने पर पाबंदी होगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर उमर मकबूल ने कहा, प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रिंटर का नाम नुमाया प्रिंट करना लाजमी होगा। आपको अपडेट करते चलें कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इलेक्शन 2024 की तशहीरी मुहिम के लिए ज़ाब्ता इहलाक जारी कर दिया। पम्फलेट, पोस्टर, हैंडबिल्स और किताबचे मुकर्ररा साइज से ज्यादा शाया करने पर पाबंदी होगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर उमर मकबूल ने कहा, प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रिंटर का नाम नुमाया प्रिंट करना लाजमी होगा। अपडेट करते चले आपको, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इलेक्शन 2024 की तशहीरी मुहिम के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। पम्फलेट, पोस्टर्स, हैंडबिल्स और किताबचे मुकर्ररा साइज से ज्यादा शाया करने पर पाबंदी होगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर उमर मकबूल ने कहा कि प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रिंटर्स का नाम नुमाया प्रिंट करना लाजमी करार है। आपको अपडेट करते चलें कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इलेक्शन 2024 की तशहीरी मुहिम के लिए ज़ाब्ता इहलाक जारी कर दिया। पम्फलेट, पोस्टर, हैंडबिल्स और किताबचे मुकर्ररा साइज से ज्यादा शाया करने पर पाबंदी होगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर उमर मकबूल ने कहा, प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रिंटर का नाम नुमाया प्रिंट करना लाजमी होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि इंतखाबी निशान बल्ला दोबारा छीन गया। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले ने खिलाड़ी के हाथ से एक बार फिर बल्ला छीन लिया। इस फैसले ने PTI के सियासी जख्म फिर से हरी कर दिए हैं। इंतखाबी निशान और अजियाला का मेहमान दोनों मुल्की सियासत से आउट हो चुका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में तरक्की के सुनहरे दौर की जामिन होगी। चेयरमैन जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान सियासी मोतबर हैं। इंशाअल्लाह आम इंतखाबात में फतेहयाब होकर कौम को तरक्की के रास्ते पर चलाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर तरक्की का दस्तूर साबित होगा और किए गए वादों को पूरा करने का वक्त अनकरीब आने वाला है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून और PTI को अशरफिया की नुमाइंदा जमातें करार देते हुए कहा कि इन दोनों को मुक्तदिर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया हुआ है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपने 10 नकाती मंशूर की तफसीलात भी बताई। उन्होंने कहा कि उनकी जमात बरसरे इक्तदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे। इन घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम होंगे। PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मुझे ही वजीर आजम नामजद किया गया। अपने 10 नकाती मंशूर की तफसीलात बताते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा, किसानों को किसान कार्ड, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के लिए मजदूर कार्ड और तालीम मुकम्मल करके रोजगार तलाश करने वाले नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड देकर पैसे दिए जाएंगे। खबरों की तमाम तर तफसीलात अपने जानी सी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने की